نگراں حکومت اور عسکری قیادت کی معاشی پالیسیز کے ثمرات۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 500 سے زیادہ پوائنٹس کا اضافہ۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 57,890 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ڈالر 64 پیسے سستا، انٹر بینک میں ڈالر 285 روپے اور 36 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ نگراں حکومت کے آتے ہی مہنگائی میں خاطر خواہ کمی آئی، پیٹرول، ڈیزل اور آئل سستا ہوا۔ جنرل عاصم منیر نیک نیتی سے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن رکھنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ہم چیف آف آرمی اسٹاف کی ملکی معیشت کو بہتر بنانے کی کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ پاک فوج اور نگراں حکومت کی پالیسیاں خوش آئند ہیں۔ نگراں حکومت کی کارکردگی اور پاک فوج کے ملکی معیشت کو بہتر بنانے کے اقدامات پر عوام کی رائے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ میں 4 روزہ وقفے پر اتفاق۔ معاہدے کے تحت حماس یرغمال بنائے گئے 50 اسرائیلی خواتین اور بچوں کو رہا کرے گا۔ اسرائیلی جیلوں میں قید 150 فلسطینی بھی رہا کیے جائیں گے۔ عارضی جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے میں قطر نے مدد فراہم کی۔ اسرائیلی سفاکیت کا سلسلہ جاری، نصیرات مہاجر کیمپ پر ایک بار پھر بمباری، 9 فلسطینی شہید۔ غزہ میں انڈونیشیا اور کمال عدوان ہسپتال بھی صہیونی فوج کے نشانے پر، شہداء کی مجموعی تعداد 14,000 سے تجاوز کر گئی۔ غزہ میں ہنگامی بنیادوں پر جنگ بندی کی جائے، مزید انسانی جانوں کا ضیاع ہونے سے روکا جائے، عام اور نہتے شہریوں پر حملے بند کیے جائیں، غزہ کے رہائشیوں تک بجلی، پانی، ایندھن سمیت تمام بنیادی سہولیات پہنچائی جائیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ کا برکس اجلاس سے خطاب۔ فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے سنجیدہ امن مذاکرات کیے جائیں۔ 1967 کی سرحدوں کے مطابق ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک امن کا قیام ناگزیر ہے۔ سعودی ولی عہد کا تمام ممالک سے اسرائیل کو اسلحے کی سپلائی بند کرنے کا مطالبہ۔ ابتدائی حلقہ بندیوں پر اعتراضات کی سماعت کا معاملہ، الیکشن کمیشن میں نئی حلقہ بندیوں پر دائر کیا گیا اعتراضات پر کیسز کی سماعت آج ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ نئی حلقہ بندیوں پر الیکشن کمیشن کو مجموعی طور پر 1324 اعتراضات موصول ہوئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر آصف علی زرداری کی پی 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 پنجاب کے عہدیداران سے ملاقات، پی 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 پنجاب کو عام انتخابات کی تیاریوں کی ہدایت۔ صدر آصف علی زرداری نے پی 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 عہدیداروں سے پنجاب کے انتخابی حلقوں میں امیدواروں کے حوالے سے بھی بات چیت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا ڈی پی ایس گجرانوالہ کا دورہ، 24 نئے کلاس رومز بنانے کا اعلان، کمپیوٹر لیب کے لیے مزید 50 جدید کمپیوٹرز فراہم کرنے کی ہدایت، طلباء اور طالبات سے تعلیمی سرگرمیوں اور مسائل سے متعلق معلومات بھی دی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی طلباء کے لیے آرٹس اور میوزک کی کلاسز شروع کرانے کی ہدایت۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری، گزشتہ روز مزید 2990 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک لوٹ گئے۔ افغانستان واپس جانے والے غیر قانونی پناہ گزینوں کی مجموعی تعداد 2,43,000 سے تجاوز کر گئی۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ملک بدری سے ملکی معیشت پر مثبت اثرات مرتب۔ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ بین الاقوامی سرحد پر ایک دستاویزاتی نظام رائج کر دیا۔ بین الاقوامی سرحد پر آمد و رفت کے لیے پاسپورٹ پر کامیابی سے عمل درآمد شروع۔ پاسپورٹ آفس چمن میں عوام کی سہولت کے پیش نظر 10 کاؤنٹرز بنا دیے گئے۔ قلعہ عبداللہ میں بھی 5 کاؤنٹرز پر مشتمل پاسپورٹ آفس تعمیر۔
غیر قانونی افغان باشندے نہ صرف پاکستان بلکہ ایران میں بھی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث۔ ایران سے بھی غیر قانونی افغان باشندوں کی ملک بدری کا سلسلہ جاری۔ اگست 2023 سے اب تک 4.5 لاکھ افغان باشندوں کو واپس اپنے ملک واپس بھیجا جا چکا ہے۔ 1971 پاک بھارت جنگ، مارکا ہیلی سیکٹر، پاک فوج کی جرت اور بہادری کی لازوال داستان۔ ہندوستانی فوج کی 202 ماؤنٹین بریگیڈ نے 23 نومبر کو ہیلی سیکٹر پر حملہ کیا، دشمن کو منہ کی کھانا پڑی۔ بھارتی فوج کی 66 ماؤنٹین بریگیڈ بھی قبضہ کرنے میں ناکام رہی۔ پاک فوج کے میجر محمد اکرم اور صوبیدار گل محمد نے دفاع وطن میں بہادری سے لڑتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ میجر محمد اکرم کو ان کی جرت مندانہ اقدامات کے اعتراف میں نشان حیدر عطا کیا گیا۔ پاک فوج کی جانب سے خیبر پختونخوا پولیس کی استعداد کار بڑھانے کے لیے خصوصی اقدامات۔ خیبر پختونخوا بالخصوص ضم اضلاع میں 5 مراحل میں 23,792 پولیس اہلکاروں کی تربیت مکمل۔ شمالی وزیرستان کے علاقے سپین وام میں 40 اہلکاروں کی خصوصی تربیت جاری۔ تربیت کی بدولت پولیس اہلکار مستقبل میں دہشت گردی سے نمٹنے اور قیام امن میں اہم کردار ادا کریں گے۔ مودی سرکار منی پور میں خانہ جنگی پر قابو پانے میں ناکام۔ ضلع کنگ پوکپی میں علاقے میں باغی گروہ اور بھارتی سیکورٹی فورسز کے درمیان جھڑپ میں فوجی اہلکار ہلاک۔ کوکی قبائل کی اکثریت کا ہندوستان سے علیحدگی کا مطالبہ۔ بھارتی مصنفہ اروندھتی رائے کا منی پور میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ اروندھتی نے مودی کی پالیسیز کو فیشزم کا نام دے دیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں حمیرہ رانا۔ خلاصہ آپ نے سنا اور اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ نگراں حکومت اور عسکری قیادت کی معاشی پالیسیوں کے ثمرات، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار ہے۔ 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ 100 انڈیکس میں 674 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ 100 انڈیکس 58,000 کی حد عبور کر گیا۔ 100 انڈیکس 58,045 پر پہنچ گیا ہے۔ دوسری جانب ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 64 پیسے سستا ہو کر 285 روپے 36 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیل جانیں گے نمائندہ پی ٹی وی نیوز ضمیر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ضمیر عباس، 700 سے زیادہ پوائنٹس کا اضافہ اس ہفتے بھی ماشاءاللہ اسٹاک ایکسچینج کی جانب اگر ہم بات کریں تو جو رجحان ہے وہ پازیٹیو ہے، سرمایہ کار اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، روپے کی قدر بھی بہتر ہو رہی ہے۔ جی بالکل، اسٹاک مارکیٹ میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک اعتماد کا اظہار ہے سرمایہ کاروں کی جانب سے حکومتی جو پالیسیز کے اوپر، کیونکہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ دنیا بھر میں خبروں کے اوپر زیادہ جو ہے وہ ریئیکٹ کرتی ہے۔ اگر اچھی خبریں ہوں تو پازیٹیو میں جاتی ہیں اور اگر خراب خبریں ہوں تو پھر نیگیٹو میں چلی جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو تقریباً جولائی سے لے کے پاکستان کی معیشت میں جو بہتری آئی ہے، خاص کر کے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہوا 3 ارب ڈالر کا، اس کے بعد جو ٹف ڈیسیجنز لیے گئے اور اس کے بعد جو معیشت کو ایک پٹڑی پہ لایا گیا، خاص کر کے ڈالر کے ریٹ کے کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا گیا، پھر ہمارا جو دوسرا سیکٹر تھا پاور سیکٹر جس میں سب سے زیادہ ہمارا امپورٹ بل بنتا تھا، اس میں جو چوری روکنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے، جو آپریشنز کیے گئے، اس کے کافی بہتر ثمرات نظر آئے۔ خاص کر کے جو ول ہے وہ نظر آئی کہ عسکری قیادت اور جو نگراں حکومت ہے انہوں نے جو ول شو کی، اس کا یہ مظہر ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں آئے دن نئے ریکارڈ بنتے جا رہے ہیں۔ اس وقت بھی اسٹاک مارکیٹ میں 700 سے زیادہ پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے اور اسٹاک مارکیٹ پہلی دفعہ تاریخ میں 58,000 کی حد عبور کر چکی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 43,000 اور 45,000 کے درمیان ٹریڈ کر رہی تھی یہ مارکیٹ اگست کے شروع سے، اور لیکن اب جس میں اتنی تیزی آئی ہے تو صرف یہ اگست سے لے کے اور نومبر تک ہم نے دیکھا کہ تقریباً اس میں 17,000 پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے۔ نومبر اٹسیلف میں جو پہلا ہفتہ ہے اس میں 5,000 پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا تھا، تو کافی حوصلہ افزا یہ نمبرز ہیں۔ خاص کر کے جو معیشت کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ڈالر بھی جو ہے وہ پھر دوبارہ کم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ڈالر ستمبر میں بلند ترین سطح 307 پہ پہنچ چکا تھا انٹر بینک میں اور 326 روپے پہ پہنچ چکا تھا اوپن مارکیٹ میں، لیکن اس کے بعد حکومت نے جس طریقے سے کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا اس کا ثمر یہ ہوا کہ ڈالر جو ہے وہ تقریباً 280 پہ پہنچ گیا، لیکن دوبارہ تھوڑا سا وہ
अब दोबारा हुकूमत ने कंट्रोल करना शुरू किया, और ये जो पॉलिसीज है हुकूमत की, उसकी वजह से ये काफ़ी इम्पैक्ट है, और कोशिश यही की जा रही है और उम्मीद भी यही की जा रही है माहिरीन की जानिब से कि ये पॉलिसीज का तसलसल जारी रहे, ताकि जो मुआशी सतह पर जो हमें मसाइल का सामना था वो अब कम होता जा रहा है, तो आगे भी उसमें बेहतरी हो। और ये बताइएगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज का आपने जिक्र किया, एक जियोपॉलिटिकल इवेंट्स भी इसमें बड़ा किरदार अदा करते हैं। जो नेचुरल बैलेंस है तलब और रसद का, आप क्या समझते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, कितना कोरिलेट करते हैं इस मार्केट ट्रेंड में जिसका ये इफेक्ट हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए जो डॉलर के जो भी रेट है उसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो कितने हैं। जैसे जैसे हमारे फॉरेन रिजर्व्स कम होते जाएंगे, डॉलर का जो रेट है वो बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे हमारे फॉरेन रिजर्व्स जो हैं बढ़ते जाएंगे, स्ट्रांग होते जाएंगे, तो डॉलर रूपी पैरिटी जो है वो कम होती जाएगी। आप देखिए, अगर हम इस दफ़ा रिमिटेंस भी बहुत अच्छे आए हैं, इम्पोर्ट बिल हमारा कम हुआ है, ट्रेड डेफिसिट हमारा बहुत ज़्यादा कम हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट जो डेफिनेटली हमारे रिजर्व पे पड़ रहा है, और उस पर हम देख रहे हैं कि उसमें इजाफा भी होता जा रहा है। लेकिन हमारी क्योंकि पेमेंट्स जो देनी होती है इंटरनेशनल लेवल पे, हमारे लोन्स हैं उसमें भी काफ़ी डॉलर्स जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि रिजर्व जो है वो स्टैग्नेंट रह रहे हैं। इसका मतलब है कि जो हमारे पास जो रेमिटेंसेस की मद में या एक्सपोर्ट की मद में जो डॉलर्स आ रहे हैं वो काफ़ी हौसला अफजा हैं। लेकिन हमें कोशिश यही करनी चाहिए, जो माहिरीन भी यही कहते हैं कि कोशिश हमारी खास करके इम्पोर्ट्स पे और रेमिटेंस पे होनी चाहिए, क्योंकि ये दो फैक्टर्स हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा डॉलर हम कम से कम अरसे में ला सकते हैं। तो रेमिटेंस जैसे बढ़ते जाएंगे। अपडेट करने के लिए निगरान हुकूमत के आते ही महंगाई में खातिर कमी आई है, पेट्रोल, डीजल और ऑयल सस्ता हुआ है। अवाम ने कहा है कि हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुल्की मईशत को बेहतर बनाने की काविशों को सराहते हैं। निगरान हुकूमत की कारकर्दगी और पाक फौज के मुल्की मईशत को बेहतर बनाने के इकदाम कर रहे हैं। हमारी निगाहें हाफिज साहब रिक्वेस्ट है कि ये और सख्ती करे और इस मुल्क के हालात को ठीक करे। ये हुक्मरानों से कुछ भी नहीं हुआ है। जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी कावश है और उनकी जो मेहनत है अल्लाह उनको कबूल फरमाए, और उनकी नेक नियति है कि वो जो है ना मुल्क को उठाने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जब से निगरान हुकूमत आई है काफ़ी बेहतर जा रहा है। मतलब हर चीज़, मतलब मैं देख रहा हूँ जो टमाटर पे, प्याज पे, मुर्गी की सब सस्ते हो गए। जनरल साहब का ये हाथ इसी तरह मजबूत रहा तो हो सकता है कि मुल्क इस दलदल से निकल आए और बेहतरी की तरफ जाएं। इनकी जो काविशें हैं ये डॉलर को नीचे लाने में और मईशत को बेहतर करने में, तो हम इसको सराहते हैं। पाक फौज जहाँ एक तरफ सरहदों की मुहाफ़िज़ है, वो बाहर के दुश्मन के साथ लड़ रही है, वहाँ साथ साथ वो निगरान हुकूमत के, और ये जो पाकिस्तान के अंदर चैलेंजेस हैं, महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज था, इसको डॉलर की कीमत को नीचे लाने में पाक फौज का बड़ा किरदार है। ये सब चीज़ें काफ़ी पहले हो जानी चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, थोड़ी देर से भी हुई है, तो मैं कहता हूँ चलो एटलीस्ट अगर हो गई है तो चीज़ बेहतर है। अगर यही सूरत हाल रही, महंगाई कम होती रही, तो अवाम भी कुछ हाल हो जाएंगे। मैं मुतमईन हूँ, इन लोगों का जो है निगरान हुकूमत जब जैसे आया है सब कुछ सस्ता हो रहा है, पेट्रोल भी हो रहा है, घी भी हो रहा है, और भी चीज़ें जो है ना मसले हल हो रहा है। मैं पाक फौज और निगरान हुकूमत की पॉलिसियों को बहुत खुश आइंद समझता हूँ, और न सिर्फ ये खुश आइंद बल्कि पॉजिटिव साइंस हैं हमारी मुल्क की तरक्की के लिए, कौमी खुशहाली के लिए। वहाँ से हालात काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। हम लोगों के डॉलर का रेट काफ़ी नीचे तक आ गया, हम लोगों के दूसरी पेट्रोल की प्राइसेस काफ़ी नीचे आ गई हैं, डीजल की प्राइसेस और काफ़ी चीज़ें नीचे को आ रही हैं। इसका सारा क्रेडिट जो जाता है वो हमारी पाक फौज को जाता है। पाक फौज जो काम कर रही है इस टाइम वो बहुत बेहतरीन काम कर रही है, जितने पहले की डॉलर की तरह था और अभी कितना आया है। अगर इस तरह से काम करे तो हमारे मुल्क को इंशाल्लाह आगे जाने में कोई मुश्किल नहीं होगा। आर्मी जो भी काविश कर रही है, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त एक्शन ले रही है। शामिल करेंगे कुछ खबरें बैनुल अक़वामी मंजरनामे से। मैं हूँ हुमा मलिक। बात करेंगे फ़लस्तीन की। इसराइल और हमास के दरमियान जंग में 4 रोज़ा वक्फे पर इत्तेफाक हो गया है। दोनों फ़रीक़ैन ने आरज़ी जंगबंदी के माहदे की तस्दीक कर दी है। आरज़ी जंगबंदी और कैदियों के तबादले के माहदे में कतर, मिस्र और अमरीका ने मदद फराहम की है। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक माहदे के तहत हमास यरगमाल बनाई गई 50 इसराइली ख़वातीन और बच्चों को रिहा करेगा, जबकि इसराइली जेलों में कैद 150 फ़लस्तीनी भी रिहा किए जाएंगे। माहदे के तहत गजा को इंसानी इमदाद और ईंधन की फराहमी की भी इजाज़त होगी। कतरी वजारत ख़ारजा की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक जंग में वक्फे का आगाज़ 24 घंटे के अंदर होगा।
आज सुबह इसराइल काबीना ने भी मुआहदे की मंजूरी दी थी। हमास और इसराइल के दरमियान 7 अक्टूबर से जारी जंग में आरसी जंगबंदी से मुतालिक मुआहदे को बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। मज़लूम फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत का सिलसिला न रुक सका। काबिज़ इजरायली अफवाज की जानिब से गजा पर वहशियाना हमले जारी हैं। फ़लस्तीनी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सहूनी तैयारों ने एक बार फिर सफाकियत का मुजाहरा करते हुए वस्ती गजा में नसीरात पनाहगुज़ीन कैंप को निशाना बनाया। ताज़ा हमले में मज़ीद 9 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने इंडोनेशियन हस्पताल को भी खाली कराने का हुक्म दिया है। पीर को इंडोनेशियन हस्पताल पर बमबारी में 12 फ़लस्तीनी शहीद हो गए थे। मगरबी किनारे के शहर तलकरम में वाक़ पनाहगुज़ीन कैंप पर भी ड्रोन हमला किया गया, जिसमें 5 अफराद जाँ बहक हो गए। गजा में 47 रोज़ से जारी सहूनी जारियत में अब तक 14,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके, जिनमें 5,840 बच्चे और 3,900 से ज़्यादा ख़वातीन शामिल हैं। इसराइली हमलों में 33,000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक 6,800 अफराद लापता हैं। मगरबी किनारे में 7 अक्टूबर से अब तक 218 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक गजा में हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी और अलील लोग मौजूद हैं। इलाके में बीमारियों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जबकि पानी, ईंधन, खुराक, बिजली या तिब्बी साजो सामान की भी शदीद किल्लत है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में 23 लाख अफराद को इमदाद की अशद ज़रूरत है। और चीन के सदर शी जिनपिंग कहते हैं कि गजा में हंगामी बुनियादों पर जंग बंदी की जाए। ब्रिक्स इजलास से खिताब करते हुए सदर शी जिनपिंग ने कहा कि गजा तनाज़े में शरीक दोनों फरीक तनाज़े का हल बातचीत से करें, आम और निहत्ते शहरियों पर हमले बंद किए जाएं। उन्होंने कहा कि दोनों अतराफ से यरगमालियों की रिहाई को यकीनी बनाते हुए गजा में मजीद इंसानी जानों का ज़िया होने से रोका जाए और गजा के लोगों को जबरी बेदखल न किया जाए। गजा के रिहायशियों तक बिजली, पानी, ईंधन समेत तमाम बुनियादी सहूलियात पहुँचाई जाएँ। सऊदी अरब ने भी तमाम ममालिक से इसराइल को असलहे की फराहमी बंद करने का मुतालबा कर दिया है। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद सलमान ने ब्रिक्स इजलास से खिताब में कहा, गजा की सूरत हाल पर बात करते हुए उन्होंने मुतालबा किया है कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए संजीदा मुज़ाकरात किए जाएँ। अल अरेबिया न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ब्रिक्स की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि सऊदी अरब मसला फ़लस्तीन के हल के लिए जामे और ठोस अमल शुरू करने का मुतालबा करता है। सऊदी वलीअहद ने तमाम ममालिक से इसराइल को असलहे की सप्लाई बंद करने का मुतालबा करते हुए कहा कि 1967 की सरहदों के मुताबिक एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक अमन का क़याम नागुज़ीर है। रुख करते हैं एक मरतबा फिर कौमी खबरों की जानिब। इत्तलात और नशियात, पार्लिमानी अमूर के निगरान वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के दरमियान इस्लामाबाद में मुलाकात हुई, जिसमें आइंदा आम इंतखाबात से मुतल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबी अमल की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि निगरान हुकूमत आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए पुरअज़्म है। इलेक्शन कमीशन को तमाम ज़रूरी वसाइल और ताउन फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि इंतखाबात का शफाफ और काबिल एतबार तरीके से इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए हुकूमती अज़्म को सराहा। मारूफ पाकिस्तानी निजात अमरीकी एंटरप्रेन्योर डॉक्टर सुहेल मसूद को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2023 का एजाज़ दे दिया गया है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान ने डॉक्टर सुहेल मसूद को मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एजाज़ पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बाइस इफ्तिखार है। डॉक्टर सुहेल मसूद को मुबारकबाद देते हुए मसूद खान ने कहा कि हेल्थ केयर के शोबे में उनकी गैर मामूली कामयाबियाँ अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों के साथ पाकिस्तानी कौम के लिए भी बाइस फ़ख्र है। इमाम काबा शेख सालेह बिन हमीद इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर तालीम और पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाब सईद मालिकी और नुमाइंदा खुसूसी हाफिज़ मोहम्मद ताहिर अशरफी और आला हुक्काम ने इमाम काबा का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात की तैयारियां भरपूर अंदाज से जारी हैं। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात की समाअत का सिलसिला 1 नवंबर से शुरू है। नई हल्का बंदियों पर दायर किए गए एतराज़ात पर केसेस की समाअत आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कर रहा है। बेंच नंबर 1 नौशहरा के 21 हल्का बंदियों के एतराज़ात को सुन रहा है। नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन कमीशन को मजमूई तौर पर 1324 एतराज़ात मौसूल हुए। 30 नवंबर तक इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों पर एतराज़ात की समाअत का अमल मुकम्मल कर लेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के अहदेदारान से मुलाकात हुई है।
سابق صدر آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی پنجاب کو عام انتخابات کی تیاریوں کی ہدایت کی۔ صدر آصف علی زرداری نے PPP عہدیداروں سے پنجاب کے انتخابی حلقوں میں امیدواروں کے حوالے سے بھی بات چیت کی۔ آصف علی زرداری سے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے قائم مقام صدر رانا فاروق سعید، حسن مرتضیٰ، شہزاد چیمہ، سمینہ خالد گھرکی، امتیاز صفدر وڑائچ ملاقات میں موجود تھے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لبرٹی میں پولیس خدمت مرکز کا اچانک دورہ کیا اور شہریوں کی شکایات سنی۔ وزیر اعلیٰ نے انسپکٹر جنرل پولیس کو پولیس کی خدمت مرکز کو 24 گھنٹے آپریشنل رکھنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ کاؤنٹر پر عملے کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ شہریوں کے کام کو جلد نپٹایا جائے تاکہ انہیں بلا جواز انتظار کی زحمت نہ کرنا پڑے۔ گارڈن ٹاؤن میں قائم پولیس خدمت مرکز کو بھی 24 گھنٹے کھلا رکھا جائے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ڈویژنل پبلک اسکول گجراوالا کا دورہ کیا اور بچوں اور بچیوں کے لیے فراہم کی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اس موقع پر اسکول میں 24 نئے کلاس رومز بنانے کا بھی اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہدایت دی کہ سیکنڈ شفٹ کے لیے اسپورٹس سرگرمیوں کا آغاز کیا جائے گا۔ انہوں نے کمپیوٹر لیب کے لیے مزید 50 جدید کمپیوٹرز کا انتظام کرنے کے احکامات بھی جاری کیے۔ محسن نقوی نے DPS میں آٹزم سینٹر کا بھی معائنہ کیا اور بچوں سے ملاقات کی۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی زیر صدارت مارٹن کلیٹن جہانگیر اور پاکستان کوارٹر سے متعلق اجلاس کراچی میں ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے متعلقہ حکام کو علاقے کا مکمل سروے کرنے اور اراضی کا معاملہ وفاقی حکومت کے ساتھ طے کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کوارٹرز کے مکینوں کو کبھی بے دخل نہیں کریں گے، چاہتے ہیں کہ یہاں کے مکینوں کی زندگی بہتر اور پرآسائش ہو۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جہانگیر کوارٹرز پر موجود 25 ایکڑ خالی اراضی پر ٹاور بنایا جائے۔ یہ ٹاورز کم قیمت ہاؤسنگ کے تحت بنائے جائیں گے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں چیئرمین PTI کی جسمانی ریمانڈ میں 2 روز کی توسیع کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے 4 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کیا۔ چیئرمین PTI کو کل دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں اسد عمر اور چیئرمین PTI کی بہنوں کی عبوری ضمانتوں میں 9 دسمبر تک توسیع کر دی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے عبوری ضمانتوں پر سماعت کی۔ چیئرمین PTI کی دونوں بہنیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان عدالت میں پیش ہوئی، جبکہ اسد عمر اور زین قریشی نے حاضری کی معافی کی درخواست دائر کی، جسے عدالت نے منظور کر دیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت تک تفتیش مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ علیمہ خان، عظمیٰ خان سمیت دیگر پر 9 مئی کو جناح ہاؤس پر حملہ کرنے کا مقدمہ لاہور کے تھانہ سرور روڈ میں درج ہے۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ایک ذمہ دار اور بہترین ہمسایہ ملک ہونے کا کردار ادا کیا، جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان نے جس فراخ دلی سے افغان باشندوں کو اپنے ملک میں پناہ دینے کے ساتھ روزگار کے مواقع مہیا کیے، اس امر کو عالمی سطح پر سراہا گیا۔ 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد صرف غیر قانونی افغان باشندوں کا پاکستان سے محفوظ اور باعزت انخلاء یقینی بنایا گیا۔ افغان باشندوں کی باعزت طریقے سے افغانستان واپسی کے لیے دیگر اقدامات کے علاوہ ان کی عارضی رہائش کے لیے مختلف اضلاع میں تمام سہولیات سے آراستہ ٹرانزٹ کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ چمن اور تورخم بارڈر پر روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں افغان باشندے اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ملک بدری سے ملکی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ 21 نومبر کو 2990 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے ہیں۔ افغانستان روانگی کے لیے 306 گاڑیوں میں 627 خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی ہے۔ اب تک کل 2,43,165 غیر قانونی طور پر رہنے والے افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی ہو چکی ہے۔ دوسری جانب ایران سے بھی غیر قانونی افغان باشندوں کی بدری کا سلسلہ جاری ہے۔ اگست 2023 سے اب تک 4.5 لاکھ غیر قانونی افغان باشندوں کو افغانستان بھیجا جا چکا ہے۔ حکومت ایران نے ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی لہر میں غیر قانونی افغان باشندوں کی شمولیت پر انہیں ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا۔ غیر قانونی تارکین وطن کے داخلے سے نمٹنے کے لیے ایرانی حکام نے سرحدی گزرگاہوں کو بند کر دیا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان سرحد افغان باشندوں کی غیر قانونی نقل مکانی اور منشیات کی اسمگلنگ کے لیے استعمال ہوتی رہی۔ افغان باشندے نہ صرف پاکستان بلکہ ایران میں بھی کئی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے۔ 2021 میں طالبان کے اقتدار میں آتے ہی ہزاروں کی تعداد میں افغان باشندے افغانستان سے بھاگ کر ایران میں غیر قانونی طور پر مقیم ہو گئے۔ راولپنڈی میں قائم ہولڈنگ سینٹر میں غیر قانونی طور پر مقیم 15 غیر ملکی وطن واپسی کے منتظر ہیں۔
कैम इंतजामिया का कहना है कि 3 अफगान शहरियों को ज़ायदुल-मियाद रजिस्ट्रेशन दस्तावेज़ात रखने पर तहवील में रखा गया है, जिनके कागजात की तस्दीक का अमल जारी है, जबकि 12 दीगर अफगान शहरियों को गैर कानूनी क़याम पर डिपोर्ट किया जाएगा। खयाबान सर सैयद में वाक़ इस होल्डिंग सेंटर में गैर कानूनी तारकीन के लिए 3 वक्त का खाना क़याम की साफ सुथरी दीगर सहूलियात मुहैया की गई हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ बैनुल-अक़वामी सरहद पर एक दस्तावेजी निज़ाम राइज कर दिया है। बैनुल-अक़वामी सरहद पर आमदोरफ्त के लिए पासपोर्ट पर कामयाबी से अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। डायरेक्टर जोनल इमिग्रेशन बलूचिस्तान के मुताबिक अवाम की सहूलत के पेश नज़र और 1 विंडो कमेंट रिजीम पर अमल दरामद के लिए अब वहाँ 10 काउंटर्स बना दिए गए हैं। वफाकी हुकूमत की खसूसी हिदायत पर 1 डॉक्यूमेंट रिजिम पर अमल दरामद के सिलसिले में, जो कि पासपोर्ट ऑफिस चमन, जो कि पहले 2 जिलों पे मुश्तमिल था, जो कि किला अब्दुल्ला और किला चमन ऑफिस सिर्फ एक ही कमरे पे मुश्तमिल था और वहाँ पे सिर्फ 2 एहलकार तैनात थे और 1 काउंटर था। वहाँ पे 10 काउंटर बना दिए। ख़वातीन के लिए स्पेशल काउंटर्स बनाए गए हैं। 2 काउंटर्स पर्टिकुलरली सिर्फ ख़वातीन के लिए है, ताकि जो हमारी बहनें माएँ आती हैं उनको लंबी कतार में वेट ना करना पड़े और वो अपना जल्दी से प्रोसेस मुकम्मल कर लें। और कुछ ही दिनों में वहाँ पे कोई 1500 के करीब जो है ना पासपोर्ट प्रोसेस हो चुके हैं। इसी सिलसिले में किला अब्दुल्ला में हमने एक और बिल्डिंग जो है ना स्टेब्लिश कर दी, पासपोर्ट ऑफिस वहाँ स्टेब्लिश कर दिया और वहाँ पे 5 काउंटर हमने बना दिए। पाक फौज की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए खुसूसी इकदाम किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस नए ज़म असला में पुलिस की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए 5 मुख्तलिफ मराहिल में अब तक 23,792 पुलिस एहलकारों को पाक फौज की जानिब से तरबियत दी जा चुकी है। इस हवाले से शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पेन वॉम में 3 हफ्तों पर मुश्तमिल 40 पुलिस एहलकारों की खुसूसी तरबियत भी जारी है, जबकि 600 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को SSG की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, 300 एहलकारों को मास्टर ट्रेनिंग, 34 एहलकारों को IED को नाकारा बनाने की तरबियत भी दी जा चुकी है। इन तरबियती कोर्सेज में हथियारों का इस्तेमाल, सर्च ऑपरेशन और नागहानी सूरत हाल में शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ शामिल है। पाक फौज की जानिब से शुमाली वज़ीरिस्तान में पुलिस के 53 शहदा के लवाहिकीन की देखभाल भी की जा रही है। पाक फौज दीगर सिक्योरिटी इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए कोशिश रहेगी ताकि तमाम सिक्योरिटी के इदारे मिलकर वतन अजीज़ से दहशत गर्दी जैसे नासूर को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकें। दुश्मन जितना भी ताकतवर हो, मैदान जंग में जज्बा ईमानी, हौसले और बहादुरी में पाकिस्तान आर्मी के जवानों का सानी नहीं। 1971 की पाक भारत जंग में मशरकी पाकिस्तान के महाज पर पाक फौज की बहादुरी की कई अनदेखी और अनसुनी दास्तानों में से एक मार्का हिली सेक्टर भी शामिल है। भारतीय फौज की 202 माउंटेन ब्रिगेड ने 23 नवंबर को हिली सेक्टर पर हमला किया। हमले से कबल दुश्मन ने पाक फौज के दिफाई मोर्चों पर शदीद गोलाबारी की, मगर हमारे जवानों ने दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। पाक फौज के जवान दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बन गए और हमले को नाकाम बनाते हुए दुश्मन को भारी जानी नुकसान भी पहुंचाया। इस नाकामी के बाद भारतीय फौज की 66 माउंटेन ब्रिगेड ने भी हिली सेक्टर पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी दुश्मन को मुंह की खाना पड़ी। पाक फौज के मेजर मोहम्मद अकरम और सूबेदार गुल मोहम्मद ने दिफाए वतन में बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया। मेजर मोहम्मद अकरम को उनकी जुर्रतमंदाना इक़दाम के एतराफ़ में निशान हैदर से नवाजा गया। मार्का हिली में भारतीय फौज के मेजर HG मंजरेकर और KK राव समेत 300 से ज़्यादा भारतीय फौजी हलाक, जबकि 365 से ज़्यादा फौजी जख्मी हुए। वसाइल की कमी के बावजूद पाक फौज के जवानों ने दुश्मन की जारहियत का 19 दिन तक दंदान शिकन जवाब दिया। शिमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले सिपाही शाह ज़ेब को पूरे फौजी एजाज़ के साथ तहसील गुजर खान में उनके आबाई इलाके में सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में सीनियर फौजी अफसरान, अजीज़ व अकारिब और अहले इलाका ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक मुसल्लह फ़ौज दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। यूरोपीय यूनियन ने इंसानी हुकूक, मेहनत कशों के हुकूक, माहौलियाती मयार और अच्छी हुक्मरानी के शोबों में पाकिस्तान के अमली इक़दामात का एतराफ़ किया है। यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एक्सटर्नल एक्शन सर्विस की मुश्तरका रिपोर्ट में कहा गया है कि GSP+ स्कीम के तहत 2020 से 2022 के दौरान 4 शोबों का अहाता किया गया। GSP+ से मुस्तफ़ीद होते हुए पाकिस्तान ने इन शोबों की बेहतरी के लिए नुमाया इक़दामात किए हैं। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर डॉक्टर रीना क्वेंका ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ शोबों में अमली इक़दामात काबिल सताइश हैं। उन्होंने कहा कि GSP+ से इस्तिफ़ादा करते हुए बरामदात में मज़ीद इजाफा मुमकिन है।
मुल्तान में पैगाम पाकिस्तान अमन कॉन्फ्रेंस हुई। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सदारत में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से जय्यद उलमा ने शिरकत की और मिंबर व महराब के जरिए मजहबी हम आहंगी और तशद्दुद से पाक मुआशरे के क़याम पर जोर दिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना था कि पैगाम पाकिस्तान वो अजीम कौमी बयानिया है जिसने दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और फ़िरका वारियत के खात्मे में अहम किरदार अदा किया। उनका कहना था कि पाक फौज के सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात में पाकिस्तान भर के उलमा ने पाकिस्तान के फ़रोग़ के लिए की जाने वाली कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय जेलों में हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों की गैर कानूनी नज़रबंदी को मुख्तलिफ बहानों से तूल देने पर हिंदुत्वा मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि कश्मीरी सियासी कैदियों के साथ जेलों में जिस तरह का सलूक किया जाता है इसकी इंसानी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि कई उम्र रसीदा रहनुमा और कारकुन मुतादिद आर्ज़ों में मुब्तला है लेकिन इन्हें इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम नहीं की जा रही। हुर्रियत तर्जुमान ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल और दूसरी आलमी तंजीमों पर जोर दिया कि वो नज़रबंद हुर्रियत रहनुमा और कारकुनों की हालत ज़ार का जायजा लेने के लिए अपनी टीम्स भेजें। और क्या आपको बताएं कि भारतीय रियासत मणिपुर के इलाके ज़िला किंग पोकपी में बागी और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प में एक फौजी एहलकार हलाक हो गया है। बागी तंजीम ने दावा किया है कि फौज ने लोगों पर बिला इश्तियाल हमला किया। हमले के बाद जिले को बंद कर दिया गया है। इंडिया टुडे के मुताबिक मणिपुर की रियासत में कुकी आबादी की अक्सरियत हिंदुस्तान से अलहदगी का मुतालबा कर रही है। अब तक 60,000 से ज्यादा लोगों को घर से बेदखल कर दिया गया है। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक 36 घंटों के दौरान 249 गिरजाघरों को जलाया गया, 4,786 घर जला दिए गए। मणिपुर में फसादात के दौरान 300 से ज्यादा खवातीन को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया गया, जबकि 200 से ज्यादा अफराद की हलाकतें और 1100 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। भारतीय अपोजिशन लीडर ने एक बयान में कहा है कि बीजेपी इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। मोदी हुकूमत मणिपुर में तशद्दुद के वाक़यात को ख़त्म करने में संजीदा नहीं। भारतीय मारूफ मुसन्निफ़ा अरुंधति राय ने मणिपुर में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि वहाँ के वाक़यात को नस्ल कुशी की एक शक्ल करार दिया गया। मोदी के हिंदुस्तान, मणिपुर और हरियाणा में मज़ालिम बढ़ने से बाखबर हैं। अरुंधति राय मोदी पर ख़वातीन के खिलाफ जराइम और भारत में मजहबी अक़लियतों के खिलाफ जराइम पर खामोशी इख्तियार करने का इल्ज़ाम लगाया है। नाम नहाद जमहूरियत की दावेदार भारतीय रियासत में मुसलमानों का कत्लेआम जारी है। मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम, खुसूसन मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में हिंदुओं की निजकारी के घिनौने किरदार से मोदी मुजरमाना खामोशी दुनिया के सामने आया है। अरुंधति राय ने वाज़ेह इशारा दिया कि किस तरह इंतहा पसंद तंजीमें ललकारते हुए मुसलमान ख़वातीन की इस्मत दरी का मुतालबा करते हैं। मोदी का हिंदुस्तान तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है, जिसमें जिनसी तशद्दुद और इस्मत दरी के वाक़यात में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ है। यह हकीकत इंतहाई मज़हक़ा खेज़ है कि 1.4 बिलियन आबादी वाले मुल्क की जमहूरी पॉलिसी इंतहाई नाक़िस है। अरुंधति राय ने यह भी कहा कि अगर दुनिया को ये लगता है कि इस नाम नहाद जमहूरी रियासत के गैर इंसानी और गैर मुनसिफाना फैसलों से दुनिया को फ़र्क नहीं पड़ेगा तो ये बिल्कुल गलत है। इन्हीं हालात में मुल्क जल्द अफरा तफरी का शिकार होगा, फिर $1 मिलियन की डील भी उनके कुछ काम न आएगी। और शिमाली कोरिया ने अपना जासूसी सैटेलाइट खला में भेज दिया है। इससे कबल शिमाली कोरिया ने जापान को बताया था कि वो एक सैटेलाइट लॉन्च करने का इरादा रखता है। इससे कबल शिमाली कोरिया ने अपने जासूसी मसनूई सैयारा 2 बार खला में भेजने की कोशिश की थी, लेकिन वो दोनों कोशिशें नाकाम रहीं। इस दौरान अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज जनूबी कोरिया के बंदरगाह पहुंचा है। ये जहाज शिमाली कोरिया के रॉकेट भेजने के पेश नज़र इलाके में भेजा गया है। उधर सोमालिया में सैलाब से हलाक होने वालों की तादाद 50 हो गई है, जबकि 7 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। एक सरकारी अहदेदार ने बताया है कि शदीद बारिश के नतीजे में लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है और इलाके में खुराक और साफ पानी की किल्लत है। मुल्क में अगले 3 रोज़ भी बारिशों का इम्कान है, जिससे सैलाब में इजाफा होगा। सैलाब से पुल तबाह हो चुके हैं, रिहायशी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं और मवेशियों को भी नुकसान पहुंचा है। माहिरीन का कहना है कि ये सैलाब माहौलियाती तब्दीली का नतीजा है।
CTO लाहौर के अहकामात पर कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। कम उम्र ड्राइविंग पर अब तक 3,345 और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 1,670 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। लाहौर शहर के पोश इलाकों में 190 मकामात पर खुसूसी नाकाजात कायम किए गए हैं। CTO लाहौर मुस्तनसर फिरोज का कहना है कि हादसात के सद्देबाब और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ट्रैफिक पुलिस पुरअज़्म है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि शहर अपने ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल को यकीनी बनाएं। शहर में 30 लाइसेंस दफातर, 10 मोबाइल वैन्स और 3 सेंटर्स 24 घंटे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कम उम्र बच्चों के साथ उन्हें गाड़ी और मोटरसाइकिल देने वालों के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। वालिदैन अपनी जिम्मेदारी निभाएं और अपने कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग की इजाज़त हरगिज़ न दें। अवाम को बासहूलत अंदाज में ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के लिए ट्रैफिक पुलिस सक्खर रीजन की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में कैंप्स लगाए जा रहे हैं, जहां चंद मिनट में लर्नर लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। इस हवाले से देखते हैं सक्खर से इमरान मलिक की ये रिपोर्ट। हुकूमत सिंध की जानिब से ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा को आसान बनाते हुए मुख्तलिफ पेचीदगियों को कम करके चंद मिनट के प्रोसेस के बाद ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। सक्खर में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में कैंप्स लगाकर अवाम को फौरी लाइसेंस बनाने का सिलसिला शुरू किया गया है। रोडी प्रेस क्लब में लगाए जाने वाले कैंप में अवाम की एक बड़ी तादाद ने लर्नर लाइसेंस हासिल किया। लाइसेंस बनवाए 315 रुपए में, बिल्कुल आसानी से। मैं सुजुकी का ड्राइवर हूँ और 5 मिनट भी नहीं लगे, ड्राइवरी लाइसेंस बन गया मेरा। ऐसे वक्फे से हम दूसरे इलाकों में कैंप लगाते जाएंगे। वैसे हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में ब्रांच लगी हुई है, सक्खर PSF है, वहाँ लर्निंग लाइसेंस बनता है। आसान प्रोसेस के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल अवाम में जिम्मेदाराना ड्राइविंग का शऊर पैदा करने में एक अहम कदम है। ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए इस तरह के इकदाम खासे सूदमंद साबित होते हैं। मलिक इमरान शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, सक्खर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आलमी एंटी माइक्रोबियल आगाही हफ्ता मनाया जा रहा है, जिसका मकसद बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ऐसे जरासीम से आगाही हासिल करना है। अक़वाम मुत्तहिदा हर साल 18 नवंबर से 24 नवंबर के दरमियान जरासीम कुश हफ्ता मनाती है। आलमी इदाराए सेहत के मुताबिक दुनिया भर में जरासीम कुश मज़ाहमत पर हर साल 7 लाख अमवात का सबब बनती है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इस वक्त होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के वक्त के साथ बदल जाते हैं और एहतियात का असर कम हो जाता है, जिससे इन्फेक्शन का इलाज मुश्किल हो जाता है और बीमारी फैलने, शदीद बीमारी और मौत का खतरा बढ़ जाता है। इसके नतीजे में एंटीबायोटिक्स और दीगर जरासीम कुछ अद्वियात बेअसर हो जाती हैं। इन्फेक्शन का इलाज मुश्किल या नामुमकिन हो जाता है। रवां साल इस दिन का मौजू मिलकर बीमारी की रोकथाम के लिए मुतहर्रिक होना है। नाज़रीन, पाकिस्तान के सयाहती मकामात अपनी खूबसूरती में यकता और मुनफरिद हैं। बहुत दिन ज़िक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान में सियाहत के फ़रोग़ के लिए अक्स पाकिस्तान के उन्वान से तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। तफसील बताएंगे ख्वाजा मोहम्मद कलीम। नुमाइश में पाकिस्तान की इलाकाई सकाफतों को उजागर किया गया और कराची से कश्मीर तक मुख्तलिफ सयाहती मकामात की खूबसूरत तस्वीर भी पेश की गईं। पाकिस्तान कितना खूबसूरत है और पाकिस्तान में टूरिज़्म किस हद तक प्रमोट किया जा सकता है और किन इलाका जात में टूरिज़्म को प्रमोट किया जा सकता है, ये हम इस एग्जीबिशन को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। शहरियों ने कहा कि ये नुमाइश सयाहती ज़ौक़ की तस्कीन और बेशबहा मालूमात का जरिया बनी है। टूरिज्म की बड़ी कमी है पाकिस्तान में, सो ये सारी पिक्चर्स हमें जो है ये डिपिक्ट करती हैं कि हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है, इसमें वैरायटी कितनी है, फेस्टिवल्स, जगहें, फिर इवन वाइल्ड एनिमल्स वो भी दिखाए गए हैं। इसमें जो अक्से पाकिस्तान को पोर्ट्रे किया है वो बहुत खूबसूरती के साथ किया है। नॉर्दर्न एरियाज़ की खूबसूरती को देखें, इसमें साउदर्न एरियाज़ को देखें, लोगों की खूबसूरती जिसमें जिस तरह कैलाश की पिक्चर्स हैं, उनकी ख़वातीन की खूबसूरती और जिस तरह कैरवान्स को शो किया हुआ है, जो सीनरी, माउंटेनियस ब्यूटी को शो किया हुआ है, वो बहुत ही खूबसूरत और प्रोफाउंड है। पाकिस्तान के सकाफती और सयाहती रंग उजागर करने से न सिर्फ सयाहत को फ़रोग़ मिल सकता है बल्कि मुआशरे का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने में भी मदद मिल सकती है। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। बल्तिस्तान की मुनफरिद तहजीब और सकाफत को महफूज करने और आलमी सतह पर उजागर करने के लिए बल्ती कल्चर डे मनाया गया। इस दिन को तमाम दफातर, तालीमी इदारों और कारोबारी मराकज़ में लोग बल्ती टोपी और रिवायती शॉल पहनकर मनाते हैं। मज़ीद तफसील जानते हैं स्कर्दू से हमारे नुमाइंदे कासिम नसीम की इस रिपोर्ट में। बल्तिस्तान की मुनफरिद तहजीब और सकाफत को उजागर करने के लिए बल्तिस्तान डिवीज़न में कल्चरल डे मनाया गया।
डिविजनल इंतजामिया के ज़ेर तमाम बल्तिस्तान के चारों अजला स्कर्दू, गांछे, शिगर और खरमा में खुसूसी प्रोग्रामों और तकरीबात का अहतमाम किया गया। इस मौके पर तमाम दफातर, तालीमी इदारों और कारोबारी मराकिज में लोग बल्ती टोपी, मकामी शाल और मलबूसात ज़ेब-ए-तन किए हुए थे। सकाफती दिन का खुसूसी प्रोग्राम बॉयज डिग्री कॉलेज स्कर्दू के हाल में मुनक्किद हुआ, जहाँ बल्ती जुबान में तकारीर और शोरा ने ताज़ा कलाम पेश किए। इस मौके पर कदीम तहजीब व सकाफत के लिए इस दौर में दरपेश चैलेंजों को उजागर करते हुए खाका भी पेश किया गया। महफिल में बल्ती नमकीन चाय और रिवायती अज़ुक़ से मेहमानों की तवाज़ु की गई। कदीम तहजीब व सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को आम लोगों तक पहुँचाने के लिए वाक़ का अहतमाम भी किया गया। ये जो बल्तिस्तान की जो एक रिच कल्चरल हेरिटेज है उसके साथ वो मुंसलिक हो जाएं। नई जनरेशन में हमारे कल्चर से काफी ज्यादा वो दूर हो चुके हैं, तो एक दफा हम दोबारा से अपने कल्चर को रिवाइंड कर रहे हैं। शुरका ने इस दिन के मनाने की अहमियत और अफादियत को सराहा। इस नौयत की तकरीबात से हमारी मुनफरिद तहजीब व सकाफत को महफूज करने में मदद मिलेगी। कासिम नसीम, PTV न्यूज़, करदो। और माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक कुछ खबरें शामिल करेंगे। शकरगढ़ और इसके गिरदोनवा में दफ़ा 144 के नफाज के बावजूद फसलों की बाक़ियात को जलाने का सिलसिला जारी है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक फसलों की बाक़ियात जलाने वालों के खिलाफ अब तक 12 मुकदमात हो चुका है। इन पर 9,43,500 रुपये जुर्माना भी आयद किया जा चुका है। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा कहते हैं कि जिला भर में कूड़ा करकट और बाक़ियात को आग लगाने पर मुकम्मल पाबंदी है। उन्होंने कहा कि स्मोक आगाही मुहिम के दौरान फ्री मास्क भी तकसीम किए गए हैं। नाज़रीन, मौसमियाती तब्दीली से मुराद दर्जा हरारत और मौसम में तवील मुद्दती तब्दीली है। फॉसिल फ्यूल्स जलाने से आलमी सतह पर औसत दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। अनवारुल्लाह खान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तवानाई की पैदावार के लिए फासिल फ्यूल्स को जलाया जाता है। जलने की इस अमल से कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर ग्रीन हाउस गैसेस फिजा में शामिल होकर मौसमियाती तब्दीली का बायस बन रही है। फासिल फ्यूल्स लाखों साल पुराने मरने वाले पौधों और जानवरों के बकायात से बनते हैं, जिनमें कोयला, तेल और कुदरती गैस शामिल है। ईंधन के ये ज़राए बिजली पैदा करने, खाना पकाने, गाड़ियाँ चलाने, सनती और दीगर सरगर्मी में इस्तेमाल होते हैं। सैलाब, बारिश का वक्त पर ना होना या फिर बहुत ज़्यादा बारिश होना, तूफान, स्मोग, खुश्क साली और दीगर कुदरती आफात इन्हीं के मरहोने मिन्नत है। हमारा 1% से भी कम शेयर है ग्रीन हाउस गैसेस में, लेकिन वक्त के साथ साथ आबादी में भी इजाफा हो रहा है, सनतें भी बढ़ रही हैं और गाड़ियाँ भी रोड पे ज़्यादा हो रही हैं, तो इसमें इजाफा होगा। उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने ये प्लेज किया हुआ है कि हम 2030 तक अपनी जो एनर्जी है उसको हम रिन्यूएबल पे लेके जाएंगे। हुकूमत ने काफ़ी सारे इंसेंटिव दिए हैं, सोलर पैनल की भी ऊपर दिए हैं और एनर्जी की पॉलिसी भी लेके आए हैं, क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी भी लेके आए हैं, तो पॉलिसीज़ वगैरह काफ़ी सारी हैं। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन, कोऑर्डिनेशन और फंडिंग और चौथी चीज़ मैन पावर, ये अगर हम सब कर सकेंगे तो हम इसको एड्रेस कर लेंगे। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जिनका आलमी अखराज में हिस्सा है तो सबसे कम, ताहम आब हवा की सबसे ज़्यादा ख़तरे से दो चार ममालिक में शामिल होने की वजह से हकीकत में एक चैलेंज है। फासिल फ्यूल्स के बरक्स काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए जैसे हवा, पानी, शमसी तबकारी और ज़मीन की गर्मी को इस्तेमाल करके ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज और इससे पैदा होने वाले नुकसानात को कम से कम किया जा सकता है। अनवरुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, पेशावर। अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, ताहम बालाई इलाकों में रात के औकात में मौसम सर्द रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले लेह की बात करेंगे, जहाँ पे कम से कम दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में -5, गोपिस, गिलगित और श्रीनगर में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल।